Hello students, today we are going to discuss the second part of the lesson, fractions, lesson number 6. Turn to page number 90. C. Write a fraction that matches each name. So here you have been given some words, that is 1/3. So it is written as 1/3. So 1/3 means 1 out of 3 parts. Okay. So तुम लोगों को कैसे लिखना पड़ेगा? 1/3 लिखने से 1/3 लिखना पड़ेगा. ऊपर 1 और नीचे 3. That means 1 out of 3 parts. So second one you have to write on your own, 7 9th, 17 20th. You have to write this on your own and show it to me. Check out the next question, D. Write the fractions in words. 1/9 is given 1/9 and you have to write 1/9. So the second one you have to write it on your own and third one also. E. Tick the fractions for the colored region. Here in the figure there are some colored parts and you have to tick the correct options from the tree. So how many parts are there as total in the figure? 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 parts in this figure. So out of the 8 parts, 3 parts are colored. So the correct option will be the second one, that is 3/8. So you have to calculate and write or tick the correct answer from the other two questions. Next, check what fraction represents a whole. Whole means total. Okay, so as you can see in the picture, there is a circle which is divided into two. So there are 2 equal parts in the circle. So and both the parts are colored. That is, the fraction will be 2/2. That is, 2 out of 2 part of the circle are colored. Okay, so in the next figure you can see that there is a triangle which is divided into 3 equal parts. So and all the 3 equal parts are colored. So 3 out of 3 parts are colored. So you have to write 3/3. Similarly, in the other figure there is a square which is divided into 4 equal squares and all the 4 equal squares are colored. So you have to write 4/4. That is, 4 out of 4 parts are colored. इसका मतलब हम लोगों ने ये स्क्वायर को 4 टुकड़ों में भाग किया गया है. तो ये 4 टुकड़ों में से चारों के चारों टुकड़े हमने कलर कर दिया है. तो चारों के 4 टुकड़े अगर कलर कर दिया तो 4/4 लिख सकते हैं हम. तो 4/4 मतलब चारों के 4 टुकड़े मतलब पूरा स्क्वायर है कि नहीं. सो नीचे की लाइन देखो तुम. फ्रॉम द अबव फिगर वी कैन क्लियरली सी दैट all parts of the figure expressed as 1 into which it has been divided are colored. Therefore 2 out of 2 equal to 1. ये सर्कल का 2 हिस्से में भाग किए थे हम लोग. तो ये दोनों के 2 हिस्से अगर हम लोगों ने कलर कर दिया तो कलर करने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को? पूरा सर्कल मिलेगा, है कि नहीं. सो 2 out of 2 part is equal to 1. मतलब 2/2 equal to 1. एंड ये ट्राइंगल में देखो 3 out of 3 पार्ट. ये ट्राइंगल को 3 हिस्सों में हम लोगों ने टुकड़े कर दिए. तो तीनों के 3 हिस्से अगर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया तो पूरा ट्राइंगल आ जाएगा, है कि नहीं. दैट इज़ वाई 3 out of 3 इक्वल टू 1. और ये स्क्वायर में भी 4 out of 4 इक्वल टू 1. When the number of colored parts is the same as the number of equal parts, the fraction is equal to 1. ठीक है. Now try yourself. Write any 4 fractions equal to 1. अब तुम लोगों को ऐसे 4 fractions जिसका वैल्यू 1 होगा वो लिखना है तुम्हें, ठीक है, और दिखाना है. Turn to the next page. A fraction may indicate part of a group. यहाँ पे क्या है? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ heads. कितने heads है यहाँ पे? There are 4 heads. There are 4 heads. 3 of them are colored. We say that 3/4 of the heads are colored. Or 1/4 of the heads is not colored. यहाँ पे देखो 4 heads है, इसमें से 3 heads को कलर किया गया है. तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? 3/4 of the heads are colored ऐसे लिख सकते हैं. मतलब 4 हेडों में से 3 हेड को हम लोगों ने कलर कर लिया है.
तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 3/4 ऑफ द हैट्स आर कलर्ड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 out of 4 hats are not colored. Okay, so next exercise number 29. Write a fraction to complete each sentence. ए, यहाँ पे देखो सर्कल के अंदर 4 चेरीज है और बाहर एक है, तो they have written 4/5 of the cherries are inside the circle. मतलब ये 5 चेरियों में से 4 सर्कल के अंदर है। सो 4 out of 5, टोटल कितने चेरीज थे? 5, सो 4 out of 5 चेरीज आर इनसाइड द सर्कल। नेक्स्ट देखो बी के अंदर यहाँ पे देखो कितने एप्पल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं? 8 एप्पल्स है। 8 एप्पल्स में से कितने एप्पल्स खाया हुआ है? तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है, जो फ्रैक्शंस होगा यहाँ पे लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट सी भी करना है। Exercise number 29, 2, question number 2. Write a fraction for each. 3 out of 5. So 3/5 ऐसे लिखना है। So 5 out of 6 तुम लोग को लिखना है। 12 out of 16 लिखना है। Okay. Next question number 3. Answer each question. What fraction of the umbrellas are open? यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, देखो। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? एक क्वेश्चन दिया गया है कि What fraction of the umbrellas are open? यहाँ पे कितने अम्ब्रेलाज है? 1 2 3 4 5 6 7 7 अम्ब्रेलाज है। तो 7 अम्ब्रेलाज में से कितने अम्ब्रेलाज ओपन है? 1 2 3 4 अम्ब्रेलाज ओपन है कि नहीं? सो हम लोगों ने क्या लिखा है? 4 out of 7 और 4/7 अम्ब्रेलाज आर ओपन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें लिखना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अम्ब्रेलाज आर क्लोज। सो कितने अम्ब्रेलाज है? जितने अम्ब्रेलाज है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, 7 अम्ब्रेलास है तो 7 को नीचे लिखेंगे, और कितने अम्ब्रेलास क्लोज्ड है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। सो 3 out of 7 अम्ब्रेलास आर क्लोज। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी तुम्हें कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर सी एंड डी। Turn to the next page. Question number 4. Write your fractions. तो पिक्चर्स दिया गया है, वो पिक्चर्स देख के तुम्हें फ्रैक्शंस लिखना है। ठीक है, तो डैश ऑफ द डॉग्स आर स्लीपिंग। तो यहाँ पे कितने डॉग्स हैं? 4 डॉग्स है। तो 4 डॉग्स में से कितने डॉग्स सो रहे हैं? तो 1 डॉग सो रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4 होगा। ठीक है, तो बाकी पिक्चर्स देख के तुम लोगों को लिखना है फ्रैक्शंस। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किसको कहते हैं और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं? यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया गया है, देखो 2/5। तो यहाँ पे न्यूमरेटर कौन सा है? ऊपर वाला न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर कौन सा है? डिनोमिनेटर नीचे वाला है। So 2 is the numerator and 5 is called the denominator. ठीक है, the line between the numerator and the denominator also has a special name. It is called fraction bar. ठीक है, तो ऊपर का जो नंबर है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, बीच का जो लाइन है उसको कहते हैं फ्रैक्शन बार, और नीचे का जो नंबर है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। Each fraction is written as numerator and denominator. Numerator मतलब क्या है? Number of parts taken. कितने पार्ट्स हम लोगों ने सिलेक्ट किया है और कितने पार्ट्स हम लोगों ने लिया है। ठीक है, डिनोमिनेटर मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द होल टोटल में कितने पार्ट्स हैं तो उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, और वो टोटल पार्ट्स में से हम लोगों ने कितना पार्ट लिया है तो उसको कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल थे तो 2 out of 5 मतलब 5 पार्ट है, वो 5 पार्टों में से हम लोगों ने कितने पार्ट सिलेक्ट किए हैं? 2 पार्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास वर्क। Fill in blanks with the word numerator or denominator. In 2/3, 2 is the क्या होगा? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर होगा, तो ये तुम लोग लिखो। B in 5/6, 6 is the क्या होगा? लिखो। Question number 2. Write the numerator and denominator of each fraction. फ्रैक्शन दिया गया है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है तुम्हें यहाँ पे लिखना है बॉक्स में, तो लिखो ये सब। We will discuss the remaining part of the lesson in the next video. Thank you.